Good evening. Hi, In good one evening. of the slide you have said that. Hello. I can hear Okay. you. In one of the slide you said that we cannot say we have invented the product. Yeah. But the brands, the product what we represent Yeah. are the actual inventors of that product. Yeah, that's okay. Then we Do can you say do you those- present your patent as well? Yeah, we have. We are the. It's not patented. It is the inventor. They have invented the air filters what we supply. Now in market, competitors are there. But 100 years back, they have only invented that filter. So do you think it really adds any value mentioning that as or emphasizing about that? Mentioning is okay, but if your pitch is around that, Okay. if the entire is like हम लोग inventor है, What generally I say is because it represents the quality, because they are the inventors. They know if in detail, in depth knowledge they have. Good. That's what I feel. the thing is, sir, I want to give you business, Correct. but I want to see the uniqueness that you have. In the sense, if you have invented it, how far ahead are you compared to the current competition that's in the market? How fast are you solving problems compared to the others? Because if you invented, that means you came to know about problems way before everybody else. And because you got the first mover's advantage, right? So I would want to see speed. I want to see better QMS, better quality management system. I want to see standards and systems in place. And I also want to see better customer service. So you need to have a differentiator, especially in the analytical market. And I'm sure everything is getting copied. You know fidget spinner, right? Fidget spinner. जिसने बनाया उसका पैसा बना ही नहीं यार, पूरा दुनिया पैसा बना लिया. हाँ, स्ट्रेस कम, I don't know how stress was reducing with that, but जिसने बनाया उसको उसने पैसा बना ही नहीं. That's what happens. So that's why people don't tie themselves to inventions. They know someone is going to copy, just modify it and then move ahead. So please have differentiators in your presentation. We'll come back on this section. ये खत्म होने के बाद इधर आते हैं. है 7 मिनट है. One second, guys. I can't hear him. What he's saying कि जो तुमने inventor किया है, हाँ. so if suppose that company is 50, 40 years old, so 40 years old company, they can show as a expertise and as a part of problem solving things. Okay, I'll give you an That is example. different. I'll give you an example. So, it's called Bureau Veritas. 200 साल पुराना कंपनी है, French MNC है. Recently got 3 of my workshops certified by them. Okay? Now I can use it as a great marketing anchor. They can mention it, but they can't have the pitch based on that. क्योंकि कैसा है, as we move ahead in time, or any business that moves ahead in time, every business will have a gap or challenge Yeah, that the agree. competition will fill beautifully. And especially organizations which are less on resources sometimes solve problems faster. उसका risk कम है तो risk ज़्यादा ले रहा है. ये भी होता है because in a big system to change something I have to see the way it's going to affect everything else. So sometimes large organizations take a lot of time to make a move, whereas the smaller ones do it quickly. They might fail. So you can mention it, but don't let your pitch be around that. क्योंकि I agree, yeah. क्योंकि इसमें ultimately क्या है, इसमें मेरा क्या है? So ऐसा सामने वाला पूछता है. yeah, initially we can say as a part of this company is 40 years old and we are the expert in that. 1 second, we'll have to, yeah. Yeah. Just like if he's giving the example, Huh. if some company they have a 40, 50 year old Yes, background and they have invented something. yeah, So in the market, a lot of people they came in the same product. correct. But if somebody he has a 40 year of experience, they have expertise in that. So we can show as an expert in that field. Yes, but the thing is this, as soon as I tell you we've been in the field for 40 years, how do I feel? Does it make sense if the number That will show during conversation what extra solution we are providing based on their problems. might not guarantee great service always? I can tell you मैं 15 साल से कर रहा हूँ and I can have a bad session here. जो आप इतने साल से कर रहे हो उसके बाद आपका अचीवमेंट इंडस्ट्री में कैसा रहा है, कितने लोगों का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है, आपसे एसोसिएट करने के बाद कितने लोगों का बिजनेस सुधरा है, ये मैं सुनना चाहता हूँ. Yeah, so that we can share in the form of a story. You What can. What we You have, can. But please remember, just because the company is old doesn't mean it's great. Yeah, that's I agree. Yeah? We are- So, because I've seen this happening, especially organization 10-15 साल पुराना हो जाता है ना, अरे सर हम लोग इतने साल से कर रहे हैं ना, आप पैदा भी नहीं हुए थे तभी. अरे, makes zero sense. It has to make sense, okay? Next question, please. Yes. Hello. Continuously roll. Yeah. I am from Custom Software Solutions background. Okay. A great question, customer software solutions. Yes, custom. Everyone listen to this question, okay? I would like to pitch high ticket clients Yeah. and respectfully avoid low ticket clients.
how should I formulate my pitch? Oh, great question. I love this question. So I want to avoid sasta client and I want only mehenga client. Okay, can everyone hear me? Yes. All right. So the first thing that you really want to do is stop sending ads. Start filtering your funnel well. In the sense, मैं उनको approach करूँगा जो वो ticket category में बैठते हैं. I'll give you my own example for one of the services that we have. We have a drop down. उसमें लिखा है minimum 1.5 लाख से 3 लाख. जिसको नहीं लेना ना वो सोच के भी क्लिक नहीं करेगा कि अरे इसका चालू ही 1.5 लाख से हो रहा है. एग्जाम्पल. सो फर्स्ट द फिल्ट्रेशन है, बिकॉज कैसा है ना, गलत लीड सिस्टम में आ गया वो मेरा समय खाएगा. ठीक है, अब समझो आ गया एक सस्ता लीड आ भी गया. It is okay to address a client with a lower budget, but if you can show the value that you bring to the table, they might extend their budget. We have done that. वो जो 4 times वाला revenue वाला मैं story बोल रहा था, we did that on a 20-minute call. उसका 1/4 ही budget था. वो कहीं और से budget ढूंढ के लेके आया, because उसको लगा कि इसके पास आएगा तो problem solve हो जाएगा. So you can still address them, and then of course focus on high value clients. I would suggest have still a mix of 90-10. Thus almost there. एकदम नीचे तो छोड़ दो, डोंट वेस्ट योर टाइम. उस क्वालिफाई नहीं होना चाहिए वो. एंड देन फोकस ऑन योर हाई टिकट. वर्क्स? ओके मैम, यस आपके सामने ही है. या whenever you want to switch. Hello, you have a sir. question. Whenever you want me to be done, let me know. Yeah? Sorry? Oh, you have 2 questions. 1 second. No, once the time is up, please let me know. Yeah, okay, yeah. So, sir, actually, I'm into software training. Training, okay. And I teach kids at so when I'm like as you said, that video feedback is very important. When I put my pitch presentation, the testimonials, but many parents are very hesitant to give the video feedback, especially they don't want the kids to be in the picture and all that. So they say that, we would like to give a text feedback, but not the video feedback. So how do I, as you mentioned, the Great. video feedback is very important. So customer feedback देना ही नहीं चाहता है. And I agree with kids, you don't want to show Especially photograph. with the kids, yeah. It happened with us. We did an event and then we couldn't put the video up. Because गलती से my entire team shot it पीछे से and वो भी सब बच्चे और parents shot में दिख रहे हैं. If it would have been shot from the other side, कोई दिखता ही नहीं. And we had to discard GBs of data. In this case, 2 alternatives. One, I can, if ask photograph of the parent and then a text, but you have to present it above on your website. In the sense, when someone visits your website, agar text is the only option with a face, with someone's face, you don't have to also mention their full name. First name is okay. Come, please come. First name is okay. मुझे एक photo चाहिए, मुझे उनका नाम चाहिए और text चाहिए, but present this above on your website. Like second fold पे mention करो इसको. First fold पे always have a nice banner. Second fold पे mention, because I don't want to see that, which I have lost interest already. Secondly, in your brochures, have a nice segment, and I should see that segment quickly. Same format, okay? And also, if you can, LinkedIn पे जमा करो और feedback, endorsements and all of that. You have to get that on LinkedIn as well. That people generally are comfortable with. So collect it that way. In your business, this challenge is gonna be there forever. Yeah, that's वो the change biggest नहीं होने challenge वाला. These two are ideal ways of doing it. We'll come there right after this. 2 more questions here, then we'll move on this side, sir. Hi, Amrut. I'm Hi. Shivani. I'm Hi, a Shivani. final year business student. Okay. I'm still learning. But in this digital first era, how much the negotiation success depends on the emotional intelligence for that compared to the data-driven insights? 80-20. Sorry? 80-20. Yeah. It depends. Sometimes it's the opposite as well. Okay. 80% price hai, 20% I don't like you. A lot of times deals get rejected just because I don't like your face. हाँ, वो room पे आया, he did not smile, he did not greet me well, I'm not going to work with you. By the way, high value clients, I did not like the clothes that he was wearing. Shabby. So, EI plays an important role, but you'll have to look at it from a holistic standpoint. Because, for example, I can be emotionally great connected with you, but my product is bad. Doesn't work. Product is good, मैं अच्छा हूँ, लेकिन मेरा pricing messy है. Still won't work. This triangle, it has to be sorted and balanced as per the industry. Like one client that we're working with, इतना price sensitive है, मुझे बोला कि मैं 1% ही discount दे सकता हूँ. 1%. क्या खेलोगे आप 1% पे? But उसका industry पूरा 1% पे चल रहा है. B2B business है. वो बोला मैं 1% के ऊपर खेल नहीं सकता हूँ. मैं अगले साल appraisal दे ही नहीं पाऊंगा किसी को. और वो large business में खेल रहा है. तो वो कहाँ वो 0.5, 0.4 पे खेल रहा है. तो उसको वॉल्यूम में देखना है, उसको फिर कस्टमर सर्विस भी देखना है, फिर उसको अपना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखना है, AMC देखना है. सो इट डिपेंड्स मैम.
But always try solving problem. So when you are keen, they will give you more opportunities to make mistakes. That's how you can encash it better. Yes, we'll now move on this side. 2 more questions and then we move here, then we close it. Oh, I'm sorry, Laga. Okay. और यहाँ, so 1, 2, 3. Okay, perfect. एज आई एम ट्रैवल एजेंट, हर इंक्वायरी चाहता है कि वो मुझसे सफिशिएंट बात करे. एक डेस्टिनेशन के बारे में उनको आधे घंटे बताया, हाँ. फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो मुझसे ही चाहते हैं, मेरी टीम से नहीं चाहते हैं. Okay. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपका टीम को एनेबल करो, आप सामने आके बात मत करो. आई नो यू लव योर बिजनेस, मेरे साथ भी सेम होता था. अब मेरे पास लास्ट .io, yeah, n8n.io. No, it can everything. If you can imagine it, it can work. Okay? It's a freemium, which means if you have your own hosting, you can host that particular thing. How many of you have used WordPress? WordPress free है, right? उसको आप किस चीज़ के लिए पे करते हो WordPress के लिए? वो डोमेन नेम के लिए और फिर होस्टिंग के लिए. सिमिलरली N8N भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन है. आपको खाली बस उसके होस्टिंग के लिए पे करना पड़ता है, बाकी द एप्लीकेशन इज़ फ्री. ओके, तो फ्रीमियम है उसमें. कुछ फिर आप जब खरीदोगे फिर वो वर्डप्रेस में ये टेम्पलेट खरीद लो, वो टेम्पलेट खरीद लो, वो ऐसा वाला चीज़ रहता है. बट मोस्टली फ्रीमियम में मोस्ट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस वो फ्रीमियम में बहुत अच्छा चीज़ कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ द टूल. Basically, this is basically a way to all the things that I told you technically how to build the AI agent, वो step by step इसमें construct कर सकते हैं through Lego blocks kind of a node, जिसको हम nodes बोलते हैं. So ये हम लोग एक construct करके अभी बनाएंगे, right? But we'll do this so that you can go back and execute the exact thing. We'll send you some videos through emails or something like that, which you can make. But essentially, this is how the construction looks like. You will have an AI agent. Definitely, it will have a brain. It will have some tools, and then it will have a way to take inputs and responses. That's all it is, right? So, cool guys, shall we start making this one right now? Perfect, okay. So, we will go here, where is this? Here, let's go here. Cool, now, remember in the diagram that we did here, what was the first node that we had? Input. परफेक्ट, वेरी गुड. वही खाली याद रखो तो यू विल बी एबल टू मेक इट. ओके, अभी इसको हम प्लस करेंगे और इफ यू सी हियर समथिंग कॉल्ड एज अ ऑन चैट मैसेज. इसका मतलब क्या है? आई गो बैक टू कैनवस. ऑन चैट मैसेज, सो बेसिकली हम लोग ने एक चैट इंटरफेस किया है. आई शोड यू विथ व्हाट्सएप. क्योंकि डेवलपमेंट के लिए उसमें बहुत सारे API कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ता है, बट मैं एक सिंपल जो डेवलपमेंट मोड में एक चैट हम लोग ने बना दिया. सो आई कैन जस्ट से हाई हियर एंड वो कुछ नहीं करेगा, बस हाई करके वो मैसेज ले लेगा. ना व्हाट वी नीड टू डू इज, ये मैसेज को हम लोग को क्या किसको देना है? AI एजेंट को. परफेक्ट. तो अब इसको हम लोग थोड़ा हाइड कर देते हैं और एक AI एजेंट नोड क्रिएट करते हैं. सो AI, you go to the AI and then you see there is something called as a AI agent node, right? So that's this thing. I'll come back to this a little bit later on, but essentially तो हमारे पास 2 नोड हो गया. एक मैसेज गया जो AI एजेंट के, so the message from here goes to the AI agent. अब ये AI एजेंट ने हाई करके ये रिस्पॉन्स जो है ये लिया है, बट ये कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि हाँ काम नहीं दिया है. लेकिन हाँ मेमोरी क्या चाहिए? ब्रेन मेमोरी. यस एब्सोल्युटली, ब्रेन चाहिए पहले, राइट? परफेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका एक ये जो है चैट मॉडल है, मेमोरी एंड टूल है, इसमें से कौन सा चीज़ जो है ब्रेन के लिए एक्ट कर सकता है, किस में अटैच कर सकते हैं? मेमोरी है. देखो ह्यूमन बीइंग्स के पास एक ब्रेन भी है और मेमोरी भी है. चैट मॉडल. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अब वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन दिस, सो योर अंडरस्टैंडिंग विल इम्प्रूव डेफिनेटली. ओके, सो ना हम लोग ने चैट मॉडल देखा, हमने फिर सीइंग दिस ईयर एंथ्रोपिक, ये सभी जो है हम लोग जो देखते रहते हैं सब अवेलेबल है ये, राइट? तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एजेंट्स जो है इसको पावर करने के लिए ब्रेन चाहिए. जैसे कि ह्यूमंस को डायरेक्टली ब्रेन मिलता है, हम लोग ब्रेन शॉपिंग कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन ए ह्यूमन कि मेरे को ये जो दिया वाला ब्रेन है अच्छा नहीं लगा, कुछ और ब्रेन उठा के डाल सकते हैं हम लोग, राइट? Just like that, agents can do it, we can't do it, but that's the thing. Okay, so we'll give it a brain. For now, we'll simply give it a Google Gemini chat model.
basically you select this particular Google Gemini chat model, or you give it the credentials basically, right? So I'm just going to give it something like this, and उसको हम लोग को एक API के key डालना पड़ता है. So we can get to a API key. If I have time, I'll show it right now. 1 second. All you do is you go to Google Gemini API key. अब ये लिंक में जाना, राइट? API की ढूंढना. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंट कर रहे हैं. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स you and me can't host it on a system and make it work. It is there with Google Gemini, it's there with API and all that thing. Google Gemini gives a lot of free APIs. So हम लोग क्या करेंगे इसको the Gemini API. Yeah, let's put the Gemini API. Create key. और एक ये की क्रिएट करता है. दिस इज द की. सो ऑल दिस की डज इज इट गिव्स अस द परमिशन टू यूज द गूगल ब्रेन मॉडल. दैट्स ऑल. बिकॉज वी कांट पर्सनली यूज इट, सो वी टेक द परमिशन टू यूज दैट, राइट? सो दैट्स हाउ दिस वर्क. सो आई पेस्ट दिस की हियर and I just connect it. Is this rocket science, guys? No? You know? Okay, got it. Yeah. हाँ, फ्री, हर चीज़ फ्री में एक एस्ट्रिक्स लगा रहता है. हाँ, सी अभी तक हम लोग ने मेरे बहुत सारे प्रोडक्शन फ्लोज इसमें रन कर रहे हैं. ओनली थिंग इज वो थोड़ा डिलेड रहेगा. मतलब फ्री का माल जो है ना थोड़ा डिले रहता है. हाँ बस दैट्स ऑल. हाँ काम करेगा. काम करने के लिए हम लोग तो पूरा हम लोग कितना 500 कम्युनिटी मेंबर्स हैं हमारे, सब फ्री वाला में चला रहे हैं अभी तक. किसी को कोई कंप्लेन नहीं है, राइट? सो इफ़ यू वांट $10 और वो सभी करके स्पीड कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट एंड ऑल सब उसमें कस्टमर ना 2 सेकंड वेट नहीं करेगा, राइट? तो हमारे कस्टमर सपोर्ट और ये वाला उसमें पेड APIs डालते हैं, लेकिन बाकी सब के लिए फ्री APIs. नॉट अ प्रॉब्लम. 2 सेकंड कस्टमर वेट कर सकता है उस चीज़ के लिए, राइट? सो हमने API डाल दिया और हम लोग ने देखा ये बहुत सारे मॉडल्स है. गूगल जेमिनी 2.5 जो है, जो भी लेटेस्ट मॉडल है इधर ये आ जाता है. तो हम लोग ने ये एजेंट को एक ब्रेन दे दिया. ओके, सो ब्रेन, सो बेसिकली इफ यू हैव दिस chat message, AI agent takes it, there's a brain. Now let's test it a little bit, okay? So I will just come here and I will just say, hi, my name is, so save कर देता हूँ पहले. My name is Kunal Naik, okay? And basically what that agent does, so if you see here, this was very, very fast. I mean, it was still fast. बट ए एजेंट ने क्या किया, एक मैसेज को लिया, वो मैसेज को API को कॉल किया और फिर इसमें रिस्पॉन्स दिया. इसने रिस्पॉन्स दिया, हाय कुणाल, नाइस टू मीट यू. सो अपना एजेंट काम कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है. सो एवरीबडी हियर विथ मी, और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है अभी? सिंपल है? ओके ठीक है, सिंपल. ओके, नाउ अब इसको पूछते हैं व्हाट इज माई नेम. व्हाट इज माई नेम. And if I say enter, अब ये हाँ ये काम में लग रहा है. यस, सो ये इसमें लिखा है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट, बट इसमें लिखा है कि एज एन AI आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट यू, सो आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, यू हैव टू टेल मी. अभी तो नाम दिए थे और ये भूल गया नाम. सो व्हाट डू वी नीड हियर? सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड मेमोरी? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके, सो दैट्स द थिंग, राइट? सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक मेमोरी डाल देंगे. ये सिंपल मेमोरी, जो लोग टेक्निकल लोग हैं, PostgreSQL, मोटर ये सब डाल सकते हो, बट एक सिंपल मेमोरी डाल देंगे. तो इसका मतलब क्या रहता है, ये 5 चैट विंडो मतलब क्या है कि हम लोग जब चैट GPT यूज करते हैं, राइट, बेसिकली हम लोग जब चैट ये करते हैं, यू सी दैट हाय हे कुणाल बोल रहा है. ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने ये मेरा अकाउंट है, उसमें मैंने सिस्टम कुछ प्रीवियस चैट्स किया है. तो दिस इज चैट नंबर 1, आई गेव इट एंड देन द एजेंट गेव अ रिस्पॉन्स. तो ये दोनों को स्टोर किया है. तो हाँ, मेमोरी स्टोर किया. तो आई कैन टेल इट, राइट? आई कैन से यू आर लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर. सो यू आई टोल्ड इट लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर, आई कैन एक्ट एज अ लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर. तो अब ये रोल अज्यूम कर लिया, लेकिन उसको याद है कि ये कॉन्वर्जेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है. सो सिमिलरली हम लोग ने क्या किया, इस चीज़ ये कॉन्टेक्स्ट को रिटेन करने के लिए हम लोग ने क्या है कि सिंपल मेमोरी दे, ताकि वो चैट हिस्ट्रीज को रिटेन स्टोर कर पाए.
क्लियर गाइस, रॉकेट साइंस नहीं है ना, बिल्कुल, ओके कूल। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके देन आई विल से किस, अगर फिर से हम लोग कर देंगे हाँ व्हाट्स माय नेम, तो इसमें मैं कॉपी कर दूंगा सिंपल और एंटर कर दूंगा। तो अब क्या होगा, देखो ये मेमोरीज में मैंने जो मैसेज दिया और इसने जो रिस्पॉन्स किया, ये दोनों मैसेज 2 टाइम, ये 2 दिखा रहा है, मतलब वो दोनों सेव कर दिया। नाउ इफ आई आस्क व्हाट इज माय नेम, इफ आई आस्क व्हाट इज माय नेम, अब ये देखो ये मेमोरी से रिकॉल करेगा एंड यू आर सेइंग इट सेज योर नेम इज कुणाल नायक, जो भी है, राइट। सो हाउ यू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ मैसेज, एआई एजेंट, ब्रेन एंड देन द सिंपल मेमोरी। ओके, क्वेश्चंस? या you can, very very good, yeah. So basically now the next question is, ये एजेंट को हमारा डेटा कैसा दें? चैट हिस्ट्री तो एक टाइप ऑफ डेटा है, बट अपना डेटा भी देना चाहिए उसको, राइट। सो there are different tools that you need to give it to you, which is the next section that we have here. Anything else that you thinking of, everything will go under the tools. Okay, yeah. हाँ, नहीं, उसके लिए एक टूल है, एक बेसिकली आप, दैट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, आप मैं, हाँ करेक्ट। उसको क्या करना है, उसको कहता है, एक टूल है, इट्स कॉल्ड ज़ेप या समथिंग लाइक दैट, जो आपके जो वेरियस टूल्स है वो चैट हिस्ट्री ना वो एक ही टूल में सेव करता है उसको। फिर आप जो भी टूल्स एक्सेस मतलब फिर उसको आप एजेंट को एक्सेस दे दोगे तो वो आप जहाँ भी चैट कर रहे हो इसके पास वो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, राइट। तो बेसिकली हैरी पॉटर का मूवी किसने देखा था, वो जो डम्बलडोर ने ऐसा करके वो मेमोरी निकाला और फिर पूल में डाल दिया, राइट, एक ही पूल में, राइट। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो कि आपके जो डिफरेंट एजेंट्स, डिफरेंट टूल्स में आप जो मेमोरीज स्टोर कर रहे हो उसको आप एक जगह इकट्ठे एक बाल्टी में डाल दोगे और वो बाल्टी जो है इसको पकड़ा दोगे, तो फिर वो एक्सेस करके वो आपको रिस्पॉन्स कर सकता है। तो थोड़ा टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन है, बट वो हो सकता है, नॉट पॉसिबल क्योंकि वो मेमोरी है। हाँ ये जो हम लोग जो ये चैट जीपीटी यूज कर रहे थे बोल रहे हैं, हाँ, वेरी गुड, concept same here. Basically if you have to think of a thing like this, जैसे कि आप मॉल जाते हो, राइट, मॉल में भी एक व्हाट वी से ब्रांडेड स्टोर्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल ब्रांडेड स्टोर्स भी हैं। सो व्हाई इट हैपेंस लाइक दैट, राइट। सिमिलरली क्या करेंगे, एक ब्रांड ओपन एपीआई जैसे कंपनी है, वो तो चैट जीपीटी तो बनाता है। अब जब लोग देख रहे हैं कि लोगों को इंटरेस्ट है एआई एजेंट्स में, तो वो भी एक थोड़ा सा एक जगह बना देगा एआई एजेंट्स के लिए, राइट। बट हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, नॉट, वी कांट कस्टमाइज इट, वी कैन यूज इट, जो जितना अवेलेबल फीचर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट N8N जो ये प्लेटफॉर्म है, ये जो है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस को अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस के लिए, राइट। तो चैट जीपीटी में लिमिटेड कस्टमाइजेशंस, N8N में अनलिमिटेड कस्टमाइजेशंस, दैट इज द डिफरेंस। कॉन्सेप्ट वही है। या गो फॉर इट। हाँ, yeah, yes, absolutely. So basically now what you have, when you're renting this, what happens is that imagine the scariness that you have if somebody has an access to your internet usage. Very scary, right? That is a security breach. Now what this N8N platform does is you control what you do in that. So you control this platform itself, right? So when organizations onboard this tool, they have an instance of this N8N tool. They own that tool, they own the database, they own everything. The only way that it can leak is if the agent, if somebody comes in and says कि मेरे को ये company का IP information दे दो,
एंड इफ द कंपनी डिड नॉट ट्रेन द एजेंट कि भाई ये नहीं देना है, हाँ, तो ये इधर हम लोग जो सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया ना, तो मैं बोलेंगे भाई ये वाला इंफॉर्मेशन मत देना, या फिर और एक एजेंट को लगा देंगे हम नीचे कि भाई तेरा काम देना है कि भाई जो कस्टमर पूछ रहा है दे सकते नहीं सकते दे सकते। तो इसका एक भी डेमो दिखाऊंगा, हाउ मल्टीपल एजेंट्स कैन टॉक टू ईच अदर। हाँ, अभी हमारा इंटरनेट हैक होता है, मोबाइल हैक होता है, ठीक है, सब हैक होता है, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो हैकेबल। बट आज के डेट में हम जब आप जस्ट टेक 5-6 ईयर्स बैक, इंटरनेट में एंटीवायरस लगाना, ये सब लगाना, फोन वायरस, ये सब बहुत होता था, लेकिन अभी इतना सोचते हैं कि एंटीवायरस लगाने के लिए, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी इंप्रूव होते गया। सिमिलरली जब नया टेक्नोलॉजी आता है, पहले हैलुसिनेट बहुत कर रहा था, अब हैलुसिनेट कम करना शुरू कर दिया क्योंकि कंपनीज ने इसको टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया। So similarly, security will go through this entire cycle, right? N8N is an open source freemium kind of a thing. Credibility is as good as how you look at WordPress. Basically, हमें क्या पता है WordPress ने क्या पीछे लिखा है, right? But these people are SOC compliant and they are enterprise ready and all that. They have that compliance checks. So which is why it is a credible tool. If you go to the page N8N, you will see that they have all the enterprise ready compliances ready for it, right? So it's a very stable tool. Enterprises are already using it. Okay, so in terms of usage, small and medium businesses are doing it, enterprises are doing it, so you have no fear that within your business it will get hacked. Yes, absolutely. ये तो हमारा डेमो है, लेकिन मेरा वाला खुद का एक प्रोडक्शन है जिसमें मेरे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करता है एंड ऑल दैट थिंग, तो वो अलग सर्वर है। हाँ, क्योंकि आपका होस्टिंग है ना, मतलब आपने सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में, मतलब जैसे कि मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया, आप उसमें खाली लॉगिन देते हो, बट लेकिन प्रोसेसिंग तो आपके मोबाइल में होता है। सिमिलरली वो ये टूल भी आपका प्रोसेसिंग जो आपका, ये 100% फ्री टू, ओनली आप सिर्फ होस्टिंग के लिए पे कर रहे हो। You don't have to pay. You have to install it on your this thing. Basically मोबाइल जैसा है, आपने मोबाइल ऑन किया, आप जितने भी ऐप्स इंस्टॉल करो उसमें। ओके, या हाँ, बता लास्ट ये टूल का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, सो देन इट विल कंप्लीट द लूप फॉर दिस। ओके, देन विल डू अदर whichever demo you tell me, we'll do that, but let's do that. Offline in the sense like in the local, it can. So you can have, like, for example, the database is in that same server, it can have that access for it, not a problem at all. Okay, in fact, N8N itself, they have introduced something called as data tables. तो जो गूगल शीट और ये सभी का ज़रूरत होता है एयर टेबल का, उसका भी नीड उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप इतने जो टेबल्स क्रिएट करना चाहते हो, इधर से आप क्रिएट कर सकते हो आराम से। ओके, लास्ट वन टू कंप्लीट दिस लूप। अब देखो इसमें ना, लाइक देयर आर 500+ टूल्स, यू कैन थिंक ऑफ इट, एयर टेबल जो भी है, एपीफाई, ज़ोहो CRM, जितने भी आप सोच सकते हो, राइट, ऑल दिस टूल्स आर अवेलेबल। मैं सिंपली एक लिंक्डइन वाला कॉन्टेक्स्ट दिखा देता हूँ। हम लोग ने लिंक्डइन वाला कॉन्टेक्स्ट शुरू किया था, तो मैंने एक लिंक्डइन टूल सिलेक्ट कर दिया इधर, राइट, एंड मैंने अपना क्रेडेंशियल्स डाल दिया। ओके, सो बेसिकली लेट्स सी इफ माय क्रेडेंशियल इज अवेलेबल। ये क्रेडेंशियल डाल दिया, और मैंने बेसिकली क्या किया, एक पोस्ट क्रिएट करने के लिए इसको डाल दिया, और मेरा नाम सिलेक्ट कर दिया, ये मेरा प्रोफाइल है करके, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंड, ये टेक्स्ट जो है मैंने डिफाइन करने के लिए बोल दिया कि भाई खुद ही तुम डिसाइड कर लो क्या लिखना है। बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू डू हियर, दिस टूल is, see, the agent does not know कि भाई ये टूल के साथ करूँ क्या, is looking at the first time, right? तो हमें उसको समझाना पड़ेगा ये टूल को कैसा यूज़ करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको ये जो फील्ड्स है, इट्स बेसिकली अस टेलिंग कि भाई तुम्हें पोस्ट क्रिएट करना है, और तुम्हें ये वाला फील्ड जो है, जो कंटेंट वाला फील्ड है, खुद से तुम भर के उसको लिंक्डइन में जाके पोस्ट कर दो। दैट्स ऑल इट इज ट्राइंग टू डू हियर। ओके, एंड सो एंड मीडिया कैटेगरी जो है, आर्टिकल है, इमेज है, वो जब करता है, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर ऑप्शंस। बट इफ यू सी हियर, नाउ वी हैव दिस टूल। अब ये एजेंट रेडी है। नाउ इफ आई इंस्ट्रक्ट इट
it will go to this particular part and it will say write a LinkedIn post and it should be posting it on my account. Hopefully this works. Let's see. I did not give it any prompt yet, but let me just give a simple prompt here saying that एक simple prompt देंगे, you are an expert in LinkedIn content creation. तो मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं? बहुत मेहनत कर. Okay, write a AI agent prompt, system prompt or message that will allow me to create, if I give an input, it will take that input and create a LinkedIn post behalf of me. Make it short, crisp, and have good spaces. Start with a nice hook. Make it very, very engaging. End with a call to action. And basically that's it. Give me the system prompt for the N8N application AI agent node. Rocket science है. बेसिकली जो बग देना है बग दो, फिर बाद में आइटरेट करते रहो. इंसानों के साथ भी वही होता है ना कि ये करना, फिर वो गलती करेगा, फिर उसको क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे. बेसिकली दैट्स हाउ इट इज. सो प्रॉम्प्ट क्रिएट्स प्रॉम्प्ट. अब ये लेट्स सी, ये देखो योर कुणाल एक्स कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट विद द बोल्ड हुक, ऑल दैट थिंग. इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे और हम जाके इधर, हाँ वो भी करना चाहिए हमें. बेस्ट है. तो हम लोग क्या किया, उसको हमने अभी एजेंट को क्या कर दिया, वो सिस्टम मैसेज दे दिया. अब क्या करेंगे, इसको इनपुट दे देंगे कि अभी होपफुली ये काम करना चाहिए. राइट ए पोस्ट ऑन व्हाई AI agents are scary. On why AI agents are scary. तो अब क्या करेगा, वो सिस्टम मैसेज में जाएगा. Now it knows what to do. Okay, now hopefully it learns to pick up the tool. So it picked up the tool, मैसेज कर दिया और वापस बोल दिया कि मैंने पोस्ट कर दिया. अब देखते हैं लिंक्डइन अकाउंट में खोल के देखते हैं कि किया है कि नहीं ये काम. फिर गाली बकेंगे उसको, नहीं किया टेल से. सो प्रोफाइल में जाते हैं हम लोग एंड पोस्ट में देखते हैं. हाँ ये देखो आ गया. Not rocket science, right guys? So how many of you have today the good understanding of AI agents? की यही है concept. Input, output, brain, system prompt, instructions, tool दे दो, खत्म. हाँ output ये output या इस पे क्या हो गया. हाँ very good question. वो जो लास्ट नोड है ना, इसका इनपुट और आउटपुट यही नोड है. बेसिकली जो डिफॉल्ट नोड है ना N8N में, जो डिफॉल्ट नोड है, इनपुट एंड आउटपुट कम्स थ्रू दिस ओनली. जब हम लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो दोनों इनपुट और आउटपुट में दिखाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये जो इनपुट लेने के लिए तरीका अलग रहता है. उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, उसमें अलग API जाते हैं, और फिर जो तुम्हें सेंड मैसेज करना है उसमें अलग API जाता है, इसीलिए इनपुट आउटपुट उसमें दिख रहा है. बट इसके डिफॉल्ट सिस्टम में क्या है, इनपुट और आउटपुट इधर चैट करने में डायरेक्ट आ जा रहा है, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है. गुड क्वेश्चन, गुड पिक. या हाँ नो हाँ, देन ऑल्सो यू क्रिएट अ टूल ओनली. वेरी गुड. ओके, गुड. वन मोर कॉन्सेप्ट गाइस, लुक एट दिस. नाउ आई वांटेड टू बेसिकली राइट दिस कंटेंट मैसेज and then send me a email कि I have sent that email. अब how do you do that? First of all you will add the tool here, क्योंकि देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस देना है ना. अगर हम लोग उसको बोलेंगे कि तुम ये स्टेप करो तो फिर वो क्या होता है, वर्क फ्लो बन जाता है. इट इज़ लाइक वी हैव प्रोग्राम्ड दैट थिंग, बट हमें क्या थोड़ा इंटेलिजेंस देना है. सो व्हाट वी विल गिव इट टू डू, विल से कि यूज दिस जीमेल, राइट, ये जीमेल टूल यूज़ करो. अभी प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या चेंज करेंगे, प्रॉम्प्ट में चेंज कर देंगे कि सी so use the LinkedIn tool to send the message and then use the email tool
to basically send a message that I have made the LinkedIn message, and also give me the whatever the content that you have made. Okay. So basically मैंने क्या किया, ये prompt को update कर दिया, बोला कि आपके पास 2 tools है, आप कभी भी एक email LinkedIn post बनाते हो और मेरे को email कर देना. The way that you can also use it is that you can say कि भाई मेरे को पहले email content बनाओ और पहले मेरे को send करो, मैं जब approve करूँगा तब जाके post करो. System prompt. दोनों टूल दे दो. जैसे कि आप टीम मेंबर को क्या बोलोगे, इंटर्न को बैठाओगे, बोलोगे कि भाई देख तू पहले एक पोस्ट लिख, वो लिखेगा. अब वो बोलोगे तेरे को पोस्ट नहीं करना है, पहले मेरे को ईमेल कर, मैं अगर अप्रूव मारूंगा तब जाके तू पोस्ट करेगा. तो उसको क्या करेगा, उसके पास आपका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए आपका, और उसका ईमेल होना चाहिए. हाँ, ये जो है, ये देखो लिंक्डइन वाला जो कनेक्ट करना है, इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ये देखो आपका जो ये OAuth URL एंड ऑल दैट थिंग, अगर आप N8N में जाओगे उसमें एक साइन इन बटन दिखेगा बेसिकली, कहाँ तो दिखेगा नीचे, इसमें नहीं है, बट हाँ थोड़ा APIs कनेक्ट करना पड़ता है. बेसिकली हम लोग जो API की लिए थे ना, सिमिलरली लिंक्डइन कुछ API कीज प्रोवाइड करता है, तो आप उसको लिंक्डइन के ऐप डेवलपमेंट में जाना और उधर से कुछ APIs की कॉपी पेस्ट कर देना, तो वो कनेक्ट हो जाता है बेसिकली. सो आपका जो लाइफ है बेसिकली अलग अलग APIs को इंटीग्रेट करना रहेगा, दैट्स ऑल. इंटीग्रेशंस आर गोइंग टू बी दैट, और द कॉम्प्लेक्सिटी हियर इज दैट कि हर टूल का अलग अलग API एक तरीका रहता है कनेक्ट करने के लिए, राइट. बेसिकली एप्पल अपना तरीका डाला है USB ड्राइव डालने के लिए, और एंड्रॉयड अपना तरीका डाल रहा है, राइट. सो एवरी टूल विल हैव देयर ओन लाइक अ USB ड्राइव. हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी लेयर ना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. हाँ, क्यों हम लोग APIs थ्रू करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन. अगर हम लोग सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड में चलाते हैं तो फिर वो डबल ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब का पंगा हो जाता है. अगर हाँ, लेकिन API से क्या रहता है कि अब ये लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को पता है कि आप हो जो ये एक और अलग ऑथेंटिकेशन डालते हैं, तो लिंक्डइन ने खुला छूट दे दिया है कि आप जो डेवलपर्स कर रहे हैं वो इसको यूज़ करके आराम से पोस्ट कर सकते हो, ही विल नॉट स्टॉप इट. और लिंक्डइन भी केयर करेगा कि भाई ये हैकेबल ना रहे ना, N8N भी केयर करेगा कि ये हैकेबल ना रहे. सो दैट इज व्हाई यू यूज API. वी कैन यूज अ साइन इन एंड स्टफ लाइक दैट, बट इट्स बेटर टू यूज APIs क्योंकि आपका कंट्रोल, सिक्योरिटी आपके कंट्रोल में रहेगा. सेम APIs में अलग अलग है. इनफैक्ट आई मीन हाँ, इनपुट एंड आउटपुट, यस, चैटबॉट एंड आउटपुट, या सेम. टेलीग्राम ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट ओनली, बट या एनीवेज आई जस्ट गिव यू द ओवरऑल कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, टूल ऐड करोगे और फिर क्या करोगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट चेंज कर दोगे. आप नहीं बोलोगे कि पहले ये यूज करो, ये यू कैन से कि भाई यू कैन गिव द थिंग, यू कैन गिव मल्टीपल थिंग्स. इफ आई से कि पोस्ट इट डायरेक्टली देन पोस्ट इट. इफ आई से कि नो राइट दिस पोस्ट, गिव मी अ ड्राफ्ट, देन गिव मी अ ड्राफ्ट, राइट. तो आप यू कैन गिव द मोस्ट इफ एंड बट, which is what Satya Nadella and all of these companies CEOs are saying कि SaaS is dead, क्योंकि SaaS is a tool जहाँ आप लॉजिक लिखते हो, राइट, कि ये चीज़ होगा तो ये करना, ये चीज़ होगा तो ये करना. अब इसमें क्या करो, जो इंग्लिश जानता है वो लिख सकता है ये. अगर आप और आलसी भी हो तो आप ChatGPT जाओगे और अपना लॉजिक समझाओगे और खुद वो लिख देगा, राइट. So basically that is where the next programming language is going to be the human programming language. So if you have to improve your thinking, then you have to do system thinking. Note this term. It's this term called as system thinking. अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ो. What we are doing here right now is called a system, right? अभी तक हम लोग कहाँ डिविएट किए हैं, यही चैट इनपुट है, यही एजेंट है, यही ब्रेन है, यही दिस थिंग है, यही टूल्स है, कहाँ डिविएट नहीं कर रहे हैं, राइट. दिस इज ऑल आई टॉट यू अ सिस्टम. अब आपको ना नोट्स लेना जरूरत नहीं है, आप सिस्टम समझ गए हो राइट नाउ. नाउ इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना बार अप्लाई करोगे तो आपको रिटेन इंफॉर्मेशन रिटेन होगा, राइट. दैट इज व्हाई आई वाज कॉन्फिडेंट कि टुडे इफ यू कम हियर you will go back with new information and you will have hundreds of ideas, right? That's what we need to do. 100 of questions is also very good. It will do that. Prompt, yeah, it's called human. The concept is called human in the loop. Basically, उसको हम terms दिए हैं, right? Same intern वाला story.
यू टेल इंटर्न कि भाई तुम पहले ड्राफ्ट लिखोगे, मेरे को दिखाओगे, मैं जब अप्रूव करूँगा तुम पोस्ट करोगे. हाँ, वी हैव टू ऐड some tools. You can add it in the prompt itself कि whenever I give you an input, always send me an email with the content. When I say approved, when I reply approved, then go and post it. हाँ, in the prompt itself. The reply will be getting received by an AI agent again. Yes. So basically what will happen is Gmail का एक ट्रिगर रहेगा. सो ऑन मैसेज रिसीव्ड. तो बेसिकली अब एजेंट रिसीव कैसा करेगा मैसेज? तो हम लोग ये इसको बोलते हैं जीमेल ट्रिगर. सो ये एजेंट को हम दे देंगे कि अभी एक तो चैट इनपुट है, एक तो ईमेल इनपुट है. हम लोग इसको जीमेल इनपुट दे देंगे कि भाई वॉच आउट फॉर माय ईमेल्स. तो जब भी ईमेल आ जाएगा ये ट्रिगर हो जाएगा. तो अभी ये उसको पता है कि हाँ अप्रूव हो गया, तो फिर ये मैसेज लेगा और फिर जो लिंक्डइन यूज़ करके वो पोस्ट कर देगा इंफॉर्मेशन. वेरी गुड क्वेश्चन. यस. हाँ, अगर आपको चेंज भी करना है कि नहीं राइट दिस चेंज दिस थिंग, तो वो चेंज करके भी पोस्ट कर देगा फिर से. राइट. सो दैट इज वाई सेमी इंटेलिजेंस. इट्स यू टू थिंक इट डिफरेंटली. अभी तक हम ना ऑटोमेशन के दिमाग से सोच रहे हैं. अभी हमें सोचा है एजेंटिक दिमाग से कि भाई इसको टूल्स दे दिया. अब एक जो गेम है, मोस्टली गेम ये ट्रिगर्स, आउटपुट्स और ये प्रॉम्प्ट के गेम्स में है बेसिकली. या वेरी गुड. तो उसका एक है हमारे पास. लेट मी सी दैट. एक सेकेंड और एक करते हैं. तो मैंने एक this is the most used workflow within our community basically. LinkedIn level 2 देखते हैं. हाँ, बना के देते हैं ना. बना के देते हैं. ये बोलते हैं कि देखो, मैं सोचा चैट भी नहीं देना है मेरे को. अभी चैट भी नहीं देना है. हम लोग क्या करेंगे, स्केड्यूल ट्रिगर बोल देंगे कि भाई हर सुबह 10 बजे उठना. ठीक है. एक नया टॉपिक मतलब बेसिकली 30 डे कैलेंडर बोला. सो मैं बोला कि भाई यार हर रोज़ तो उठ के काम नहीं करने का, लगा हर महीना एक बार उठना, 30 डेज कैलेंडर बनाना और गूगल शीट में पटक देना. फिर क्या करना, हर रोज़ उठना और उसमें से एक एक आइडिया लेना, उसको फिल्टर करना, एक ही आइडिया लेना और जाके फिर इसको पोस्ट बनाना, लिंक्डइन में पोस्ट करके फिर उसको अपडेट कर देना कि मैंने कर दिया स्टेटस. दैट इज द थिंग. राइट. सो अगेन वेरी गुड थिंकिंग. दिस इज कॉल्ड सिस्टम थिंकिंग. सो व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि चैट ही क्यों करूं, स्केड्यूल कर देते हैं. राइट. बट अगेन द इनपुट इज व्हाट ट्रिगर. देयर इज अ ट्रिगर हैपनिंग हियर. ओनली देन द एजेंट विल गेट अप और एल्स इट विल नॉट गेट अप. Which is one? हाँ, ये पुराना वाला है. जब अभी जो हमने दिखाया है दैट इज द लेटेस्ट वर्जन. एजेंट जब वो कुछ भाषा में आउटपुट देता था, ये लिंक्डइन नोड ना पकड़ नहीं पाता था प्रीवियसली. बट अभी जो हमें दिखाया है, अभी इट्स एबल टू डू इट वेरी नाइसली. सो यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दिस ऑल्सो एंड डू इट. या इट इज बेसिकली व्हाट इट हैपन. इट विल थ्रो आउट सम कंटेंट और जो हम लोग को जो पोस्ट ज़रूरत है बस उसी को पोस्ट करना है. बाकी ऊपर नीचे का सामान नहीं चाहिए. जैसे कि इन चैट जीपीटी वी गेव राइट, हियर इज़ योर पोस्ट बोलता है, वो हियर इज़ योर पोस्ट नहीं चाहिए हमें, उसको उड़ा देना है वो बस कंटेंट को. सो दैट इज़ व्हाट इट डिड. बट द एजेंट अंडरस्टैंड, इफ यू गिव इट एज अ टूल, इट अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल. हाँ, मल्टी एजेंट इज अ शो. या हाँ बिल्कुल देते हैं. ऑफिस हम तो ऑनलाइन ही है, मेरा घर ही मेरा ऑफिस है. हाँ टीम है, नंबर है, विल गिव दैट. हाँ, code one. So I'll tell you what happens is, whenever an AI agent gives an output, there is a certain language that it gives the output in. Okay, उसको बोलता है JSON basically. JSON format you have, key value pair रहता है basically.
सो व्हेन इट गिव्स दिस आउटपुट, उसके साथ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। तो कोड नोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मात्र जो पोस्ट है या जो काम का चीज़ है बस उसी को हम सिलेक्ट करके इधर सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल इट्स डूइंग। हाँ बस, हाँ मत बस, दैट्स इट। तो उसके लिए भी हम लोग चैट जीपीटी करते हैं, भाई एक कोड लिख दो, जो ये जो जेसन फाइल है ना, इसमें जो मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है बस वही दी। हाँ, इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है कि इसमें जो अपना ये जो कोड है राइट, बेसिकली वो प्रीवियस स्टेप से एक इनपुट लेता है और इनपुट से 2-3 जेसन फाइल्स, एक सेकंड वेट, आई विल शो यू हियर। Create a JSON file with a sample output which will have the post and the content, and also it will have the status whether it's posted or not posted, the key value pair, right? So just make this simple JSON file. सिस्टम प्रॉम्प्ट, हाँ आई टेल यू। सो ये देखो, बेसिकली ये देखो, पोस्ट आईडी, लिंक्डइन, इनपुट आइडिया, लिंक्डइन पोस्ट, स्टेटस एंड ऑल दैट थिंग। मेरे को बस ये कंटेंट चाहिए। हाँ, सो बेसिकली मेरे को आउटपुट मिलता है इतना कुछ, मेरे को बस उसमें से ये कंटेंट वाला पार्ट चाहिए, इसलिए हम लोग कोड नोट डालते हैं ताकि बस इसी को सिलेक्ट कर पाएँ, दैट्स इट। ओके, सो दैट इज द ओनली रीजन दैट कोड नोड एग्जिस्ट्स। ओके, प्रीवियसली वो जरूरत था, अभी लेस इन दिस थिंग। थिंक ऑफ इट कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन द एजेंट इज क्रिएटिंग, आई जस्ट वांट ओनली द जो काम का चीज़ है उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं, दैट्स वेयर कोड नोट्स कम इन दिस। हाँ, दे एक्सेस द एजेंट, व्हाट्सएप, हाँ वो थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, you have to add the nodes available here. So basically you go here, you come here and say WhatsApp. आपके सब nodes जो है इसमें available, ये देखो WhatsApp cloud, इसे send a message, all these triggers are available here. So basically you just replace this node with your WhatsApp nodes, that's it. Again, so again that is a long tutorial, you have to go to Meta, developers Meta, create an app, then वो लोग API देंगे, and then WhatsApp API ही जरूरत है। WhatsApp का बहुत सिक्योरिटी लेयर्स है। या सो बेसिकली तो ये डेमो करते ही हमारा हालत ख़राब हो गया, बोला कि वो टोकन फेल हो जाता है। बेसिकली इट्स वेरी सिक्योर, मेटा इज, WhatsApp इज़ वेरी वेरी सिक्योर। वो क्या करता है, जो एक्सेस टोकन देते हैं वो सेंड मैसेज करने के लिए, थिंक ऑफ इट, क्यों ये करते हैं, सेंड मैसेज के लिए क्यों वो इतना सिक्योरिटी है, because there's a terrorism, mass information and all that thing. So basically WhatsApp made it very very hard to send a message to hundreds of people unless you have the right access. इसीलिए sending a message and receiving a message are two different APIs. Okay, so sending a message is very difficult. वो charge करते हैं आपको, they charge you like 0.2 rupees or 0.8 rupees if you want to send a new message, marketing message 0.8, if it is a utility message 0.2 rupees, something like that, right? So basically they are chargeable. That is why that access token is there and they can monitor कि कितना भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, right? So that is why the API configuration is little complicated, but you know, with the right set of this thing you can be able to do it. Telegram is one of the most useful ones. So if you see here, this is my Telegram bot, right? So if you see here, दिस इज़ माई लीड जेन एजेंट एक बनाया हूँ, एक स्टॉक एजेंट बनाया हूँ जिसमें मैं बस एनवीडिया देता हूँ और पूरा ये समरी 15-20 मिनट्स का पूरा समरी देता है। देन आई हैव लाइक माई लीड जेन बॉट, कभी भी एक कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है तो ये लीड कैप्चर करता है एंड इट टेल्स मी मेरा अकाउंट बैलेंस लो है कि नहीं है। ये मेरा एड्स अकाउंट का बैलेंस है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है मेरा एड्स अकाउंट। हमने फिर रनिंग फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, राइट? सो यू नीड इन्फॉर्मेशन, राइट? सो कि कितना एड्स हुआ, कितना CPM एंड ऑल दैट थिंग, तो ये कनेक्टेड है, दिस इज लाइव कनेक्टेड, राइट? सो आई विल से व्हाट इज माय एड्स स्पेंट इन लास्ट 7 days, ये currently active है। So basically what it will do, it will go and access my Google Meta ads account
it will respond the message and it will give me a response कि इतना spends, ad spends why. Because I connect the same principles. मैंने क्या बोला कि agent, I'll just show you this, then you'll understand this. So basically, if I go back here, yeah. So let's go to the ads folder, Meta Ads Insights. इसमें कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सेम. अगर आप ये देखोगे सो कॉन्सेप्ट इज मैंने व्हाट्सएप से ट्रिगर किया, एजेंट है, एजेंट के पास कैलकुलेटर है और मेटा एड्स इनसाइट्स का टूल गिवन है, राइट. सो व्हेन आई गिव इट कि भाई लास्ट 7 में जाओ तो ये टूल एक्सेस करता है, वो कैलकुलेट करता है, राइट. एंड दोज हु हैंडल मेटा एड्स अकाउंट दे नो दैट कि भाई क्या कॉम्प्लिकेटेड, वो रिपोर्ट सेक्शन फील्ड्स ये सब ऐड करना पड़ता है, राइट. तो उसको मैं एक बार समझा दिया कि ये टूल को कैसा यूज़ करते हैं, वो समझ गया. और फिर कभी भी कैलकुलेटर ज़रूरत होता है, जैसे प्लस माइनस करना है तो ये कैलकुलेटर यूज़ करके कर लेता है, फिर वापस से सेंड मैसेज कर देता है मेरे को. हाँ, दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ. तो उसमें क्या होता है कि देर इज़ अ 2-step प्रोसेस, राइट. सो व्हेन इट नीड्स टू डू एन एक्शन, राइट नाउ थिंक ऑफ अ जूनियर डेवलपर, वो रीड कर सकता है डेटा. अभी नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, वो उसको समझना है. अभी इंसान को भी समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है, वो समझ के कुछ एक्ट करना है. सो व्हाट आर द एक्शंस दैट इट कैन टेक? पॉज द एड, क्रिएट अ न्यू एड इमेज. मतलब बोले एक इमेज दे दोगे, जैसे कि आप बोल रहे थे ना, एक मैं फोटो दे के दूंगा कि ये ऐड बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये मेरे हिसाब से बना के दे दो और पोस्ट कर दो अपने अकाउंट में. सो इट कैन डू दैट. देन इट कैन लुक एट द CPA कि भाई ये एड सेट में गलत हो रहा है तो इसको ऑफ कर देते हैं. ऑडियंस, हाँ, ऑडियंस को वो अदला बदली कर सकता है कि अगर ये ऑडियंस सेट नहीं काम कर रहा है, देन इट रिमेंबर्स कि पिछले बार हम लोग क्या किए थे, अब क्या चेंज करने वाले हैं. सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो ईच स्टेप के लिए एक एक एजेंट रहेगा. एक जो खाली रीड करेगा, एक जो खाली ऐड क्रिएट करेगा, एक जो ऐड को पॉज ऑन ऑफ करेगा, एक जो खाली एक जो बेसिकली जाके नया ऐड क्रिएट करके उसको फिर नेक्स्ट 7 डेज मॉनिटर करेगा. तो आप ये मल्टी एजेंटिक हो जाता है. एक एजेंट हर काम नहीं कर सकता है. तो थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट एक्टिविटी, that small activity will be done by one agent which will talk to each other, which I can show right now if you want that multi agent कैसा दिखेगा, right. I'll just show you one example for that. Okay, right. Before that, how many of you are learning something, guys? Because I'm jumping and going based on the questions, right? So is it okay, right? Perfect. Thank you very much. Okay, so let's go back and see the multi agent part. Okay, a friend here, Tilotam, will be doing another one in Nashik where he's doing how many hours? 8 hours of Ashish ji has put him on 8 hours of duty, so he'll be teaching to execute also some of these things. Okay, तो हम लोग एक क्रिप्टो एजेंट बनाया है बेसिकली. ये देखो, so basically I'm giving a stock example here because many of you understand this. स्टॉक में क्या रहता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, करेक्ट. अब एक ही एजेंट को दोनों दे देंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा वो काम. इट विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई इट, क्योंकि फंडामेंटल रीड करना अलग तरीका है, टेक्निकल रीड करना अलग तरीका है. सो हम लोग क्या किया, एक मेन एजेंट दे दिया उसको. अब जब भी एक इनपुट आएगा इधर से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये एजेंट क्या करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को एजेंट ट्रांसफर कर देगा. उसके पास अलग टूल्स है तो वो काम करेगा, ये रिस्पॉन्स रखेगा, फिर जाएगा नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस. इसके पास अलग टूल्स है, अलग कैलकुलेटर बना हुआ है और अलग ब्रेन बना हुआ है. यू कैन चूज द ब्रेन्स, बाय द वे यू कैन चेंज, ये इधर गूगल डालें, इधर कुछ और चैट GPT डालें, क्योंकि दिस इज द रीड इमेज वाला. चैट GPT इज वेरी गुड एट रीडिंग इमेजेस. तो हम लोग ने बिकॉज ये चार्ट रीड करना है ना, MACD एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, सो बेसिकली दिस गाय इज वेरी गुड एट दैट. सो इट कैन रीड द इमेजेस और ये इमेज रीड करेगा और बोलेगा कि MACD इज मूविंग अबव, मूविंग लेस, RSI इज अबव दिस, ये सब कमेंट्री देगा. ये फिर दोनों को मिला के ये इसका इनपुट इधर आएगा, इसको इनपुट आएगा, फिर ये खिचड़ी को पूरा एकदम रिवर्स समझेगा और फिर उसको रिस्पॉन्स देगा कि आपको ये करना चाहिए, राइट. सो दिस इज बेसिक मल्टी एजेंट, जहाँ आप टास्क को ब्रेक कर दोगे और फिर ये करते रहेगा उसके हिसाब से. या इट कैन, ये कर सकता है. सो बेसिकली आपको एक तरीका देना पड़ेगा कि एक इधर नोट देना पड़ेगा कि कभी भी एक शेड्यूल कर सकते हो कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे पोर्टफोलियो में इतने सारे स्टॉक्स हैं. तो अब क्या करेगा ना, यू विल बी वंडरिंग कि ये हर स्टॉक एक बार में करेगा या अलग अलग बार में करेगा.
जैसे कि क्या करेगा, पहले वो लिस्ट में एक स्टॉक लेगा, उसका फंडामेंटल टेक्निकल करेगा ना, हु स्टॉपिंग इट फॉर डूइंग इट ट्वाइस, सेकंड स्टॉक के लिए अलग वाल करेगा, तीसरा 4 5 6 7 8 9 ये करते ही जाएगा। हाँ, इंट्राडे भी कर सकता है, लेकिन वो स्पीड उसको स्पीड थोड़ा चाहिए। तो हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखे हैं, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, बट वो 5 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं तो फिर वो एकदम लैग डिले हो जाता है, और उसमें थोड़ा एंट्री हाँ, एल्गो ट्रेडिंग या उसको, हाँ, दैट्स एल्गो ट्रेडिंग। सो इट इज़ पॉसिबल at 15 minutes time frame, 5 minutes time frame, but not at like more smaller second than 1 minute के ऊपर। तो हमने देखा बाय सेल करके वो सिग्नल देता है। तो आपको जो स्ट्रैटेजीज है वो कोड नोड में हम लोग डाल देते थे कि ये कैलकुलेट RSI मूविंग अबव, गोइंग फ्रॉम 30 टू अबव, देन बाय एंड देन कमिंग डाउन, देन सेल। तो ये करके बाय सेल सिग्नल डाल रहा है, इट इज़ डूइंग इट ऑन अबव 5 मिनट्स टाइम फ्रेम्स, क्योंकि वो थोड़ा लैग रहता है विद इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। यू हैव टू यूज़ कोडिंग, तब जाके वो कर सकते हैं। बट N8N में क्या है कि एक जब भी एक कोड इंटरफेस हो जाता है तो स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, बस दैट्स ऑल। हाँ, ब्राउज़र एजेंट अभी देखते हैं। हाँ, ब्राउज़र एजेंट पे आ जाते हैं अभी। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, वो हाँ बस, हाँ, मनी कंट्रोल का हमारे टीम में एक है जो मनी कंट्रोल से वो लोग क्या क्या रीड करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो मनी कंट्रोल के पेजेस से पूरा जो इन्फॉर्मेशन निकालता है वो निकाल के आप वो हर रोज़ कर लेता है वो। हाँ, नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू सिस्टम थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन कोडिंग राइट नाउ। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आराम से वी कैन डू दैट। बेस्ट है फेल अ लॉट। सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि यार फर्स्ट डे मैं फुटबॉल खेलने गया और एकदम टूट पीट के आ गया, राइट? तो ऑब्वियसली दैट विल हैपन। बट हम भी तिलोत्तम भाई हमने कितना एजेंट्स आपने बनाया है? हाँ, 25 एजेंट्स बनाया है। ही इज फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड ऑल्सो, राइट? बट when you visualize this concept like this, then what happens is जब आप करते I'm sure you have a lot of failures also, right? So वो failures होते ही हैं। But what I gave you, that journey I gave you, right? कि पहले communication बनाओ, फिर research करो and go that particular thing. And coding is not required. Coding will be required, just एक आध code node इधर है with a ChatGPT। मैं भी I know how to code, but I still use ChatGPT to do it, because क्या अभी नाउ सिस्टम थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एज अपोज टू यू राइटिंग अ लॉट ऑफ कोड, क्योंकि आपको बिजनेस से मतलब है, आपको काम से मतलब है, राइट? सो दैट इज द हाँ, ये तो तिलोत्तम ये पूरा एकदम टाइप करके बनाए हैं, ये सब एनिमेशन में कुछ हाँ। हाँ, वो बोल दो कि ये वाला पार्ट, ये स्क्रीनशॉट डाल दो उसको, बोलो कि ये वाला अच्छा नहीं लगा, ये और कहाँ से अच्छा लगा तो उससे कॉपी पेस्ट करके बोल दो कि इसके हिसाब से बना दो। रेफरेंस इमेज देने से भी बना देता है ऐप। वो इंफॉर्मेशन पूरा पटक दो, बोल दो कि भाई ये वाला सेक्शन इधर डालना, ये वाला सेक्शन इधर डालना, ये वाला सेक्शन इधर डालना, बस होस्टिंग करना है। Yeah, this thing will be a lot more faster. If you're doing WordPress or building websites, then Lovable much faster. हाँ, browser correct. हाँ, wait. So where browser agents come in? So अभी जो APIs के थ्रू this is all legal. लेकिन हमें कुछ वेबसाइट ऐसे रहते हैं कि आप ना APIs के थ्रू एक्सेस कर ही नहीं सकते हो, आप खाली देख सकते हो कि भाई ये है करके। बट हम तो शाने हैं, हम स्क्रीनशॉट लेके फिर हम लोग निकालते हैं उसमें से, राइट? तो अब एजेंट क्या, एक एजेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो स्क्रीनशॉट ले सकता है और काम कर सकता है, राइट? एब्सोल्युटली।
So there's an agent called as, अभी full fledged तो नहीं हुआ है, but we have tested it, it works. So it's called Browser Act. It's called Browser Act. Browser Act. So basically the whole principle of Browser Act is जहाँ आपका scraping APIs के through, official APIs के through नहीं हो सकता है. This is where Browser Act will come. It is as good as a human going, clicking, copying, pasting the concept and then doing that information. इसमें भी recently, just last week itself, इसमें एक agent mode introduce हुआ है. इसमें same concept है, आपको prompt करना पड़ता है कि भाई ये link है, ये काम करना पड़ता है, this is what you do it, and फिर आप इसको chat करके बोल सकते हो कि भाई अब ये 5 पेजेस इसका एक्स्ट्रा करके दे दो, तो वो जाएगा. आप देख सकते हो कि ब्राउज़र में वो क्लिक कर रहा है, लिंक में जाएगा. अब आपको वो क्रेडेंशियल्स देना पड़ता है कि ये लिंक में आप इधर ये क्रेडेंशियल डाल देना, तो वो करेगा. तो वो क्रेडेंशियल्स डाल के वो लॉगिन करके वो इन्फॉर्मेशन कर देगा. सो कैप्चा कर सकता है. उसमें क्या करता है, हाँ, सो कैप्चा एंड ऑल दैट थिंग इट कैन डू इट, बट कभी कभी वो अटक जाता है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक टेम्परेली कंट्रोल, वो काम कर दोगे और फिर वो आगे बढ़ के करते रहेगा. राइट. सो दिस इज व्हाट दिस ब्राउजर एक्ट. अभी they are doing it. OpenAPI has this agent, operator agent within that thing, but वो $200 सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा रहता है. But if you don't have that thing, then Browser Act, basically. Where the AI agents through official APIs, you can't extract information from a website, right? Where think of the place where a team member of yours has to go to each website's page, copy paste a content. जैसे कि Google पेज में, Google Maps में जाओ, तो एज अ विजिटर आप जाओगे गूगल मैप्स में, आप देखोगे उसका फ़ोन नंबर एंड ईमेल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है. अब सोचो आप एपीआई के थ्रू नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि ये 10,000 बिजनेसेस है, हर बिजनेस पेज में जाना, ये ईमेल फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्ट करना और ये गूगल शीट में डाल देना. तो ये ब्राउज करके जाएगा. हाँ, एक वेबसाइट पे जाएगा, ब्राउज करके वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा. हाँ, उसको डाल दोगे कि भाई स्वाइप लेफ्ट राइट करते रहो, तो वो करते रहेगा. अपना टेस्ट दे देना कि भाई ऐसा टाइप ऑफ लड़की है तो राइट कर देना, ऐसा टाइप तो लेफ्ट कर देना. अच्छा, टेंडर. ये हैलुसिनेशन हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, यस. नहीं, उससे भी और वियर्ड है. देयर इज जो बेसिकली आप अगर सो बेसिकली क्या होता है कि whenever you have a new technology ना, both sides of the world want to use it. So जैसे कि आप अगर नैनो बनाना में जाओगे, so there are some nude artists and all that kind of a thing. वो नैनो बनाने बनेगा कि नहीं, मैं ये मिडिल फिंगर वाला इमेज नहीं बना सकता हूँ, नूड इमेज नहीं बना सकता हूँ. तो उसके लिए एक टूल बनाए हैं, ओपन आर्ट, और जो भी बोलते हैं ओपन आर्ट. उसमें आप जाओगे तो यू कैन डू एनीथिंग विथ इट, बट इट्स टू वर्ल्ड्स. लाइक बेसिकली नथिंग राइट और रॉन्ग. उनका बिजनेस उसमें चल रहा है, हमारा बिजनेस इसमें चल रहा है. सो बेसिकली दैट्स द थिंग, बट इट्स टू वर्ल्ड्स. पर उसमें कंट्रोल लाया जाएगा कि भाई आप ये पब्लिक पॉलिटिशियन को ला के इधर ये इसका वो मॉर्फिज्म ये सब नहीं कर सकते हो. सो देयर विल बी सर्टन रूल्स, सर्टन गाइडलाइंस, सम एथिक्स. तो वो एथिक्स, एआई एथिक्स में चले जाता है, राइट. बट देयर विल ऑलवेज बी टूल्स दैट विल डू बोथ थिंग्स. ओके, बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट यूज केसेस राइट नाउ इन दिस एरिया इज एआई गर्लफ्रेंड जो है. फॉर सम रीजन इन इंडिया इट इज अ बिग मार्केट. व्हाई? Although we are very, very connected through mobile and all that thing, but very, very disconnected because everybody is in their mobiles, right? So it became a big use case. Now that you can't solve that problem कि भाई loneliness का problems का सबका mobile निकाल लो हाथ से, ये solve कर ही नहीं सकते. So that is how AI this thing, and you will see many movies like Her and all that kind of concepts coming up, right? So both sides are there, but AI ethics is a big area. You have to study a little bit of, for your business, for your industry, for your sector, what is that ethics or guidelines, what personally you will do or not do. But the world is open. I believe, I mean, both sides of the world, I see the reasoning of it, and you'll feel कि हाँ, इनका भी valid है reason, इनका भी valid. So do what works for you basically, and what you feel is ethical mostly.
on the NA10. So basically, I told you that thing na startup. First thing first, start by looking at the problem statement. Because what happens is, the learning of AI is endless. How many of you felt that? Yes, no in the comment section. So unless you bring it to conclusion, which is basically try to reduce reduce noise, and find the signals that work for you, then you're moving in the transition. So I don't like, so basically I'm tempted to learn many things, but I don't learn many things. Why? Because वो overload होगा, फिर कुछ नहीं करूँगा. So what you do is pick a problem, मेरे को ये problem solve करना है, and you keep learning more around that area. So मैंने कैसा सीखा था, ये AI agent and all that thing, RAG chatbot and all that thing, मैं एक दो YouTube क्रिएटर को पकड़ा और वो लोग जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हो कॉन्सेप्ट में, उसी को मैं फॉलो करते गया. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि वो लोग ने 100 आवर्स 50 आवर्स स्पेंड किया है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए. सो बेसिकली व्हाई स्पेंड दैट 50 आवर्स, मेरे को तो बिजनेस से मतलब है, काम से मतलब है. तो देन आई फॉलो फ्यू यूट्यूबर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दैट थिंग. So there's Nate Herc है, NATEHERK. Nate Herc is there. There are a couple of others. अब NA10 type करो. Basically best is type NA10. इनको ये Nate Herc है basically this guy. This guy another creator. So ये जो top creators है, you can do it. You can look at him, but he is not that informational. वो थोड़ा hype create करता है. Yeah, so this guy. So all these big faces that you see, the top 5-6 faces, those are the people that you adopt here. I'm also trying to do, but time is there. My channel is also there, just Kunal Naik. We can follow you also? Yes. I will be doing it more for the Indian context, right? For small and medium businesses, that's where my focus is. So KUNAALNAIK. Kunal, KUNAALNAIK. Yeah, टोपी के साथ. Yeah, okay. Yeah, last one. Yeah, last one. हाँ. Yes, last. Yes, absolutely. So basically आप जाओगे na10.io पे और उसके जो है टेम्पलेट्स अवेलेबल है. सो बेसिकली इसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उसका लाइब्रेरी बना के रख दिए हैं. 5000 कुछ और है. जैसे कि आप HR में हो तो आप जस्ट गो टू योर HR एंड यू विल सी दैट कि कुछ HR के वर्कफ्लोज बने हुए हैं ऑलरेडी. सो कॉपी पेस्ट देम एंड ट्राई टू एडिट देम. यू विल फेस प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशंस. या na10.io उसमें टेम्पलेट्स, वो लिंक सर्च मार दोगे तो वो आ जाएगा. ओके, कूल. API configuration. Okay, I'm very sorry to interrupt. I know कि हम कुणाल जी से शायद और 24 घंटे भी बात कर सकते हैं, but please let's hear it for him. Thank you. I think each and every question you've handled it so patiently, and I think this was such an interactive session. And इतने सारे questions, and आपने immediately you've given them a response or a tool. Which is great, and this is such a wide subject. We look forward to learning more from your videos. So thank you so much, Kunal ji. Wonderful session. And I think we started the day understanding about how to use AI responsibly. Then went into sales and negotiation. Then हमने basic chat GPT सीखा, and finally coming to agentic AI. So kudos to the CFE team of how they curated and planned this lineup of sessions. And this agentic AI, I think this was one of the best key takeaway that a lot of us are going to take. So thank you for this. I will very quickly like to invite Ashit ji and Rakesh ji to please felicitate Kunal ji. Ramesh ji. What you learned today. I would really request each one of you to give a testimonial. अगर आप वो participants group में हो तो हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है. ट्रेनर सब लोग बाहर से आए हैं तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा. अगर आप थोड़ा 5 मिनट निकाल के if you can post a video testimonial please. Thank you. The group is now open. We'll open it. We'll open it. Can we have a big round of applause for Kunal ji, please?
I request the entire CFE leadership and other leadership and dignitaries to please join on stage for a photograph. Applause for them. मेहनत बहुत लगती है कोई भी इवेंट के लिए. हाँ सचिन हमारे वन मैन आर्मी सचिन देवड़ी का वो भी पीछे लग जाते हैं किसी के भी. So please follow our channel, the गुरुवार का ज्ञान series also, and our Gurukul channel and the WhatsApp group. Thank you very much. है ना, एक पिलर्स है और सामने कभी नहीं आते. मैंने कितनी बार नोट किया हुआ है, चाहे फोटो हो चाहे माइक हो. I have seen that तीनों एकदम पीछे खड़े रहेंगे बस. Always. That is really बोलते हैं कभी और जब बोलते हैं चेयरमैन. Smile please. Okay, thank you. Thank you. Thank you. 3 cheers.